एक बेहद करीबी मुकाबले को अंजाम देना कोई शाहीन शाह अफरीदी से सीखे। मां एमिरेट्स के खिलाफ उनके इस कारनामे ने डीपी वर्ल्ड T20 में नई जान फूंक दी और प्लेऑफ्स की दौड़ को बना दिया है और भी ज्यादा दिलचस्प। शाहीन अफरीदी अपनी टीम को यह मुकाबला जिताते हुए। हार के बावजूद पुरन की टीम टूर्नामेंट में सिरमौर बनी हुई है। हालांकि लगातार दूसरी शिकस्त उनकी सरपट दौड़ती रेल को पटरी से उतार सकती है, लेकिन आगे की राह आसान होगी ये किसने कहा है। और आज उनके सामने खड़े हैं जीत की हैट्रिक लगाने को आतुर शारजा के वॉरियर्स। क्या है किसी में दम इन्हें रोकने का? आज है परीक्षा एमिरेट्स के इन सुपरस्टार्स की। और मजा आएगा जब ये दोनों भिड़ेंगे जायद क्रिकेट स्टेडियम में। यह मैच नंबर 18 डीपी वर्ल्ड T20 का, जहां होंगे मां एमिरेट्स शारजा के वॉरियर्स के सामने। आप सबको बता दें कि मां एमिरेट्स 4 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे और पहले पायदान पर हैं। उनके नेट रन रेट पर एक बार गौर जरूर फरमाइएगा। और नंबर 3 पर है शारजा वॉरियर्स। ये 5 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। अब यहाँ दोनों के दोनों कप्तान ट्रेंट बोल्ट एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स उनके कप्तान भी होंगे। और मां एमिरेट्स पूरी तरीके से तैयार होगी क्योंकि पिछला मुकाबला जो है हार के आ रही है, लेकिन शारजा वॉरियर्स 2 मुकाबले लगातार जीत के आ रही है, तो वो चाहेंगे कि हैट्रिक लगाएं। मेरा नाम है रिधमा पाठक। चलते हैं सीधा टॉस की ओर जाने के लिए। कौन बनेगा टॉस का बॉस? Yeah, it's very windy out here in the middle. It's a very grey and overcast night, but let's introduce you and warm you up to our match referee, former Sri Lanka top order batsman captain, Rusha Mahanama. Change of captain tonight for the Sharjah Warriors. It is Lewis Gregory who's skipper tonight, and for the My Emirates, it's Nicholas Pooran. It's a home game, so you've got the coin, Nicholas, if you give it a spin. Tails. Tails is the call. These heads. Heads. So, Nicholas, you won the toss. What are you going to do, and tell us why? We're going to have a bowl first. A bowl first. That's not a surprise. Yeah, it's quite cool tonight as well. So you've had a good run. You had a big meaty sandwich. You had a loss to start and a loss on your last match, but a run of 4. What happened in the last one? It was the last ball thriller. Yeah, Dubai hasn't been really nice for us in terms of winning games, but we really fought. We fought really hard. We tried our best. That last ball could have gone anywhere, but there's a lot of learnings from that game. There was a bit of a slow patch in the middle. Is there a temptation to get Tim David, someone like him, up the order? It's definitely a temptation, but again, we try to play try to play the situations the best way we can, and try to give ourselves a chance in the game. And we did do that, and unfortunately, we wasn't the best team on the day, so that's fine. Right. What about personnel? Any changes for today? Yeah, one change. During the warm-up day, Brav kind of felt a little niggle. It's quite cold as well, so just taking a little precaution. Okay, lovely. Nicholas, enjoy the evening. Let's bring Lewis Gregory in here. Lewis Gregory all the way from England, so you'd enjoy this. What's the reason that you're captain tonight? What's happened to Tim Kohler-Cadmore? Yeah, we've got a few changes in the 11. It's all been sort of last minute, so it's been a bit of carnage over the last half an hour. But Pepsi's just got a bit of a headache, not feeling great, so he's not travelled with us today. Right, I like his nickname. First time I've heard it. I like that. So right, you're captain tonight. It's a role that you're going to relish, look forward to. Yeah, I've done quite a bit of it back home, so it's not too new to me. So lads are on a bit of a heat over the last few games, so hopefully we can continue that momentum. Yeah, a couple of wins. You've come away with a couple of wins in Sharjah. What about personnel for your side tonight? I was going to say that's not the question I wanted. Right, okay. We got three changes. Guptill's obviously no good. Pepsi. Yeah, he's out. I can't remember, but 3 changes somewhere. Yeah, all right, that's fine. So you're batting first. How do you feel about that here in Abu Dhabi? Yeah, I mean, we would have had a bowl as well. Obviously, it's pretty overcast and pretty cold, so there might be a little bit on offer early. But the guys have been playing really well up top, so fingers crossed we can get out there, get off to a hot start, and put them under pressure. Good. Enjoy the evening. Cheers, Skipper. Thank you. Lewis Gregory, captain of the Sharjah Warriors, but it's My Emirates who've won the toss, and they're going to bowl first. जी हाँ, निकोलस पुरन ने टॉस जीतकर जो है गेंदबाजी का चयन किया और कुछ इस तरीके का सिलसिला भी रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हर कप्तान ने गेंदबाजी का चयन किया अभी तक इस सीजन में। मैच बड़ा लजीज है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि शो में क्या क्या है। रायडू के खराब फॉर्म पर होगी चर्चा।
आंड्रे फ्लेचर के निकनेम स्पाइसमैन का आखिर है क्या राज, जानेंगे खुद उन्हीं से। और क्या वॉरियर्स हैं इस ILT20 के छुपे रुस्तम। लग तो रहा है क्योंकि बहुत बदलाव लाए हैं अपने फॉर्म में शारजाह वॉरियर्स, और बदलाव का टाइम भी है क्योंकि आप देखिए मेंस क्रिकेट पे बात करने के लिए हमारे पास एक ऑल लेडीज पैनल है। अंजुम चोपड़ा, साथ ही साथ रीमा मल्होत्रा। गुड इवनिंग लेडीज। गुड इवनिंग। लुकिंग डायनामिक एंड स्टनिंग एज ऑलवेज। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सबसे पहले माय एमिरेट्स हमने देखा कि जिस तरीके से उनकी शुरुआत रही थी अंजुम, ऐसा लग रहा था कि इनविंसिबल रहेंगे, लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके से लास्ट बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने 3 रन बनाए, दिखा कि हराना नामुमकिन नहीं है। नहीं, नामुमकिन तो शब्द ही नहीं है, सब कुछ मुमकिन है और क्रिकेट के अंदर। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने ये बता दिया कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, मैं रन भी बना सकता हूँ, 3 रन भी भाग भी सकता हूँ। सो उससे पहले मैच खत्म होना चाहिए था, लेकिन लास्ट ओवर तक गया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट क्या कर रहे थे इस गेंद पर, जब इन्होंने गेंद डाली, शाहीन शाह अफरीदी ने पहला बॉल खेला और जब उनके नॉन स्ट्राइकर भाग रहे थे तो ट्रेंट बोल्ट विकेटों से आगे जाके खड़े थे। विकेट पे खड़े होते तो शायद रनआउट का मौका होता, वो हमने यहाँ दिखाया नहीं है क्योंकि हम तारीफ कर रहे हैं इस समय शाहीन शाह अफरीदी की, और जब हम ट्रेंट बोल्ट की तारीफ करेंगे तो हम शाहीन शाह अफरीदी को नहीं दिखाएंगे, इसलिए पिक्चर चेंज कर दी है। बट यकीनन पिछला मैच हारी जरूर है माय एमिरेट्स, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर है इस समय, टेबल टॉपर्स है, वो कभी भी बदल सकता है। लेकिन क्योंकि उनके पास लय अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर एक थ्रेट साबित होंगे शारजाह वॉरियर्स को। जी, पॉजिटिव्स बहुत है रीमा, लेकिन एक चैलेंज की बात करते हैं। एक लौते इंडियन सुपरस्टार अंबती रायडू का फॉर्म एक कंसर्न तो है। बिल्कुल है, जिस तरीके से पिछली पारी खेली है, क्योंकि जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते ना तब ये दिक्कत आपको नजर आती है। क्योंकि रायडू की जो गेम थी, शुरुआत में टाइम लेते थे, उसके बाद गियर बदलते थे, क्योंकि वो बॉल और बैट का जो रन्स का गैप था ना वो कवर करते थे। वो तब होता है जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हो, लेकिन जब आप नहीं खेल रहे होते तब आपको मुश्किल आती है वो टाइमिंग करने में। इसी वजह से रायडू की वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही, वो लय नज़र आ रही है, क्योंकि रायडू जो बल्लेबाज है ना वो टाइमिंग वाले बल्लेबाज हैं, और अगर टाइमिंग तभी करते हैं जब आप के पास मैच प्रैक्टिस होती है, तो डेफिनेटली वो शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस नज़र आ रहे थे। जी, माय एमिरेट्स की देखिए शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई और अंबती रायडू की हमने बात ज़रूर की, लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें दूसरे खेमे से शारजाह वॉरियर्स, देखिए यही टीम है अंजुम जो माय एमिरेट्स के खिलाफ 106 रनों से हारी थी। ये रिवर्स फिक्सचर है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पासा पलटा है, पलटवार बहुत बेहतरीन तरीके से किया, और उसका बहुत श्रेय जाता है उनके ओपनर वसीम को। जाता ज़रूर है, और मुझे लगता है मोहम्मद वसीम पिछले सीज़न भी बड़े अच्छे वैल्यूबल प्लेयर थे, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का खिताब था, रन्स भी अच्छी तरीके से बनाए हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं अभी इस समय। पर सामने आज जॉनसन चार्ल्स है जो पिछली बारी चले नहीं थे, वो इस पिच को बढ़िया तरीके से जानते हैं। ये पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी रन्स बनाने पड़ेंगे। और जो पिछली बार गलती थी ना वो है अकील हुसैन को बहुत सारी विकेटें दे दी थी इन्होंने शुरुआत में ही, अलग तरीके से खेल रहे थे जबकि ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ को खेलने के लिए। सो ये जो 204 रन है ना, अगर जो इनके पीछे आ रहे हैं चार्ल्स, इनसे और आगे भागना है तो पहले चार्ल्स को रोकना पड़ेगा माय एमिरेट्स को, उसके बाद ही आगे जा सकते हैं। 2 तरीके होते हैं ना रेस जीतने के, या तो आप जीत जाइए आराम से या दूसरा पीछे रह जाए, तो आप अपने आप ही जीत जाएंगे। 2 ही तरीके हैं। जी, मोहम्मद वसीम तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ होंगे जॉनसन चार्ल्स, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ग्रीन बेल्ट के लीडर बोर्ड पे एकदम टॉप पर है मोहम्मद वसीम। कितना अच्छा लगता है ना जब यूएई के प्लेयर, लोकल प्लेयर इस तरीके की परफॉर्मेंस दें। देखिए ऐसे ही मंच की तो आप उम्मीद करते हैं ना, आपको मंच मिले, वो यहाँ पे यूए प्लेयर्स को मिला है कि आप इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, सीखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसमें से आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं और नंबर 1 के पायदान पे आते हैं। यानी कि आप में वो काबिलियत है कि आप लगातार हर सीज़न और बेहतर नज़र आते हैं। एक प्लेयर अच्छा खेलता है एक सीज़न, वो समझ में आता है, लेकिन जब वो लगातार अच्छा खेलता है तो वो कंसिस्टेंसी नाम जुड़ जाता है, तो वो आपको बाकी प्लेयर से अलग करता है। जी, अगर हम जायद क्रिकेट स्टेडियम की कंडीशंस की बात करें तो हमारे बालों को देख के आपको पता चल गया होगा कितनी हवा चल रही है। पिच नंबर 4 पे हो रहा है ये मैच। बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या गेंदबाजों के लिए भी कुछ है, बता रहे हो मैं अजय मेहरा। मैच नंबर 18 एक अलग सतह पे हो रहा है क्योंकि जो पिछला मैच हुआ था वो थी सेंटर विकेट। ये जो विकेट है इसको कहते हैं पिच नंबर 4। और जैसे मैं नीचे जाता हूँ देखता हूँ, पहला मेरा ध्यान जो केंद्रित होता है कि इस सतह में लगातार फिर से आप देखते हैं वो घास की वो परत है, काफ़ी ठोस इस सतह नज़र आ रही है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को फिर से मज़ा आने वाला है। एक फैक्टर जो गेंदबाजों के पक्ष में रहेगा,
कि है कि हवा बड़ी तेज़ चल रही है, एक ब्रीज चल रही है, ओपन ये वेन्यू है, हवा काफ़ी और साथ में थोड़ी बदली भी है, थोड़े बादल भी छाए हुए हैं। तो शुरू में लगता है 3 या 4 ओवर थोड़ी सी वो मदद मिल सके तेज़ गेंदबाजों को, पर कहीं ना कहीं जब बल्लेबाज सेटल हो जाता है, बहुत ही बढ़िया सतह है बल्लेबाजी के लिए। औसत स्कोर यहाँ रहा है 155 का पहली इनिंग्स में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, 170 175, क्योंकि पिछले मैच में देखा था 160 के करीब ज़्यादा काफ़ी था नहीं सतह के ऊपर। पर कहीं ना कहीं एक बढ़िया बल्लेबाजी के लिए सतह है, अगर आप सेट हो जाए हर तरफ आप रन बना सकते हैं सतह के ऊपर। यानी वसीम और जॉनसन चार्ल्स दोनों के पास मौका है एक बड़ी इनिंग्स खेलने का। लेकिन अगर कंडीशंस की बात करें रीमा, विंडी कंडीशंस देख के पता चल रहा है क्या असर होगा इसका मैच पे? मुझे तो न्यूजीलैंड की याद आ रही है, लेकिन कि दुबई में खेल रहे हैं। देखिए बहुत फर्क पड़ता है इसमें। शुरुआत में तेज गेंदबाजों की जो गेंद है ना वो और हिलती है, बल्लेबाजों की भी मुश्किल आएगी, क्योंकि आपको कौन सी डायरेक्शन में शॉट खेलना है, विद द विंड खेलना है, अगेंस्ट द विंड खेलना है, वो भी देखना पड़ेगा जब आप एरियल शॉट खेलते हैं। और गेंदबाजों के लिए भी, कप्तान के लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है कि विद द विंड कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेगा और अगेंस्ट द विंड कौन सा गेंदबाज वो कंट्रोल कर सकता है। तो दोनों के लिए एक अलग चुनौती है, लेकिन दोनों के लिए इकट्ठी है ना, आमने सामने। ऐसा नहीं किसी एक को एडवांटेज मिल रहा है, दोनों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जी। लेकिन मैच के मैदान के उस पार जो ऑडियंस है उन्हें बड़ा मजा आता है, बिकॉज माहौल और मौसम बहुत सुनहरा रहता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आंड्रे फ्लेचर का निकनेम स्पाइसमैन आखिर क्यों है और कैसे पड़ा और उसके पीछे का राज क्या है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू क्रिकेट सफारी। आपको याद दिला दें कि माय एमिरेट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का चयन किया, तो यानी वॉरियर्स जो है आपको पहले बल्ले से नजर आएंगे। वॉरियर्स की टीम में कुछ चेंजेस हैं, मार्टिन गप्टिल खेल नहीं रहे, रीमा टीकेसी भी नहीं है, ग्रेगरी जो है कप्तानी कर रहे हैं। तो ये है जो काफ़ी चेंजेस हैं यहाँ पे जो हमें दिख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप माय एमिरेट्स की बात करें तो अंबती रायडू भी इस टीम में नहीं है। ये गेंद से पहले नजर आएंगे, तो अंबती रायडू आज खेलने वाले हैं, तो एक चेंज वहाँ पे वो है। तो माय एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स, ये बदलाव है। किस तरीके से देख रही हैं आप इस बदलाव को, द फैक्ट कि अंबती रायडू नहीं है उस टीम में? देखिए माय एमिरेट्स ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया, तो डेफिनेटली एक बॉलर ऐड करेंगे। हो सकता है कि एज अ सुपर सब जब माय एमिरेट्स बल्लेबाजी के लिए उतरे तब आपको वो नजर आए, क्योंकि उस टाइम आपके पास वो विकल्प होता है। तो एक अच्छी टीम है जो ज़्यादा बदलाव नहीं करती, वो हमेशा वो टीम होती है जिसका ड्रेसिंग रूम सेटल्ड होता है, जिसको अच्छे विनिंग नोट पे होते हैं। पिछला मैच हारे ज़रूर थे, लेकिन वो लड़ाई लड़ी थी, लास्ट बॉल पे हारते। तो मुझे लगता है कि अंबती रायडू बैटिंग के टाइम पे देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी के लिए टीम है माय एमिरेट्स, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डीप करते हैं बैट। उनके पास एक सुपरस्टार है, एक हार्ड हिटर है वेस्ट इंडीज़ के आंड्रे फ्लेचर। अब आंड्रे फ्लेचर फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका निकनेम स्पाइसमैन है। क्या आपको ये पता था? अगर नहीं पता तो ये खुद बता रहे आखिर है क्यों ये निकनेम। Good question. I'm the Spiceman. Danny Morrison gave me the name. The reason for that being because of my country, Grenada. In the Caribbean, we are known for as the spice of the Caribbean. I'm from that beautiful island, Grenada, spice of the Caribbean. Hence the reason why I'm the Spiceman. Yeah, I love Indian food. Actually, it's kind of similar to back home as well. So. You guys, they use a lot of spices. We use a lot of spices also, so it's similar, and I don't find it that difficult when I'm in India. I've been to India a few times, and I eat what I get when I'm in India. I would love to get more runs, but not only with runs. I would like higher strike rate as well. So for sure this year, I'm looking forward to scoring as much as possible. And last year, I was very comfortable. It's a team where you can, relax and just enjoy your game. So I don't see anything changing this year. So it's just for me to go out and perform. Slapped away, spicy shot it was. Funny enough, when I started, I was a terrible fielder. Very, very terrible. And I must admit, Johnson Charles, who is my best friend, he helped me a lot with my fielding, helped me with my confidence and everything. And from there, I was like, you know what? I started looking at Bravo. We all know how good he is in the outfield. And whenever I go out to field, I always want the ball, come to me. I always, urging for that ball. So that kind of helped me with my fielding, and I thrive a lot on it. And it's good when you do something
in the outfield, I call it mad skill, and mad skill means make a difference. So once I make a difference in the outfield, that can help my team to restrict the opposition for a low total as possible. वेल इनके बेस्ट फ्रेंड जो है इनके खिलाफ खेलेंगे आज, लेकिन अगर आप इनके खुद के परफॉर्मेंस की बात करें, इस सीज़न 2 में 30, 28, 42, 18 इस तरीके का स्कोर रहा है। यानी अगर आप इनकी स्कोर्स देखें अंजुम, इन्हें स्टार्ट मिल रहा है लेकिन एक बड़े टोटल की तरफ, एक बड़े स्कोर की तरफ इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फॉर्म फिर भी ठीक नज़र आई है। लंबा स्कोर ये खुद भी कह रहे हैं ना कि मैं जब भी आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ एक लंबा स्कोर बनाने की, लेकिन ये है कि कम से कम मोहम्मद वसीम सामने से अच्छा कर रहे हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सामने जब आप बॉलर्स देखते हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर उनको इतनी दिक्कत आती नहीं है, कवर अप हो जा रहा है। हम बात करते हैं ना कि जैसे डेविड वार्नर है, उनका बल्ला नहीं चल रहा दुबई कैपिटल्स के लिए, लेकिन दुबई कैपिटल्स कहीं ना कहीं फिर भी ठीक ठाक कर रही है। तो इस वजह से आंद्रे फ्लेचर के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं कि ये फील्डर अच्छे हैं, तो ही इज़ अ प्लस, ही इज़ एडिंग ऑन, इफ नॉट विद हिज बॉलिंग एटलीस्ट विद हिज फील्डिंग। सो चलने दीजिए, ठीक हो जाएंगे ये। जी हाँ, मैच बहुत लजीज होगा। ये जो बच्चे हमारे पीछे ये गेयर अप हो रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन अब वॉरियर्स की बात करते हैं जो कि एक वॉरियर के रूप में नज़र भी आ रहे हैं। इस हम बोल रहे हैं उन्हें छुपा रुस्तम, वो कमबैक करना जानते हैं। और एक चेंज उन्होंने किया है वो है अपनी ओपनिंग जोड़ी में, जहाँ पे नुनोशन डिकवेला को लेके आए मार्टिन गप्टिल की जगह, वो 106 रनों की हार के बाद। दैट्स वर्किंग। जी हाँ, देखिए हालांकि जैसे आप ओपनिंग करें नंबर 3 के लिए, उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, सारा माइंडसेट का खेल है, लेकिन जो आपके लिए क्लिक कर जाए आप कहते हैं वो चलता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि आपकी बल्लेबाजी में और गहराई नज़र आ रही है, और डिकवेला अच्छा कर रहे हैं और चार्ल्स अच्छा कर रहे हैं, नीचे आपके पास गप्टिल है, तो कहीं ना कहीं अब कॉम्बिनेशन जब सेट बैठता है तब आप विनिंग मोमेंटम हासिल करते हैं। बड़ी हार के बाद ये टीम ने वापसी की और इस टीम को आप हल्के में ले नहीं सकते, स्पेशली जब जॉनसन चार्ल्स आपके पास हो, बिकॉज जिस फॉर्म में है और इस सतह पे कमाल कर सकते हैं अंजुम। कर ज़रूर सकते हैं रिधिमा, लेकिन ये है कि करना चाहिए। 2 मैच हो गए हैं, थोड़ा फीका हो गया उनका प्रदर्शन। शुरू में लीड कर रहे थे रन्स, अभी भी अच्छे पायदान पर हैं, पर एज अ बैटर आपको खुद पता है कि आप कौन सी वाली बॉलें मिस कर रहे हैं। सो जिन गेंदों पे ये आउट हुए ना, वो गेंदें इनको बाहर मारनी चाहिए और अच्छे तरीके से खेलनी चाहिए। स्पिनर की तरफ सामने फंस गए थे दोनों मैचेस के अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सामने अकील हुसैन मिलेंगे, पहले ही वो ही स्वागत करेंगे। पिछली बार भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से बॉल अंदर आई थी, ड्राइव मारने चले गए थे। आज वो गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकील हुसैन इस ग्राउंड को अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, और वॉरियर्स जब आएंगे गेंदबाजी करने के लिए तो अब उनके पास ठीक से ना होंगे। एज ए स्पिनर किस तरीके की गेंदबाजी करनी चाहिए इस पिच पर? जो अभी तक करते आ रहे हैं ना वही करिए, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिल रही है। और जो वो तीखी तीखी गेंद मारते हैं ना एक लेंथ हिट करके, क्योंकि वहाँ से गेंद जल्दी से निकलता है, यहाँ पे वहाँ से हेल्प मिल रही है तीक्षणा को, वो अपना तीर चलाते जाइए, चेंज करना क्यों। जी, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके कंधों पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो पिछले के 2 मैचेस जीते हैं वॉरियर्स, इनकी वजह से ज़रूर जीते। कौन जीत रहा है आज? प्रेडिक्शंस। माय एमिरेट्स। माय एमिरेट्स क्यों? अंजलि ने बोल दिया माय एमिरेट्स, माय एमिरेट्स। माय एमिरेट्स क्यों? आप बता दो, आपकी भी तो प्रेडिक्शन हम साइड में रख लेंगे, कम पड़ रही होगी जोड़ देंगे। मेरे प्रेडिक्शंस यहाँ पे मायने नहीं रखते, जो कमेंटेटर्स हैं उनके मायने रखते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं माय एमिरेट्स। देखिए शारजाह वॉरियर्स के पास एक मौका है हैट्रिक ऑफ विंस करने का इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर, और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि जब उनके पास जॉनसन चार्ल्स जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं उस मोमेंटम में वो चाहेंगे कि उस मोमेंटम को आगे लेके बढ़ें। लेकिन माय एमिरेट्स एक ऐसी टीम है जिन्हें आता है करना पलटवार। चलते हैं सीधा लाइव एक्शन की ओर।